Hello, my dear student of Standard 9th, and welcome to you. And I have brought chapter number 13, India's location, geological structure, and physiography. So, before starting off my YouTube channel, I had started the first chapter, that is 13th chapter. But since this content is not available on the YouTube, so I am just uploading it right now. And your exams are near, so it's a one kind of revision kind of thing you can assume. Okay, so without any further waste of time, let's begin the chapter number 13. Hmm. So as you can see, India's location. So इंडिया की लोकेशन हम लोग देखेंगे. जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, सो जियोग्राफी वाइज कहाँ पर है, एंड फिजियोग्राफी, डेट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन. So let me go through it, and today I am going line by line. So India hold a unique position among the countries of the world. India is a country having the largest democracy and its culture is one of the oldest. So in the first two sentences it is very clearly stated that our country is a unique country among all the country of the world, and we are having the largest democracy. Friends, in the year 2019 uh, Lok Sabha election, there were approximately, I'm not know the exact number, but approximately 90 crores voters are there, more than 90 crore voters. And if you are thinking largest democracy, then you will say your counter argument is that India is the second largest country. But friends, remember, China is not a democratic country. Okay, it's a communist country. So वहाँ पे उसको हम लोग डेमोक्रेसी नहीं कह सकते. And its culture one of the oldest. Okay, कल्चर वल्चर के बारे में हम सब स्टैंडर्ड 10th में पढ़ेंगे, बट राइट नाउ our culture is the oldest culture. It has the largest democracy in the world. The coordinating the coordinating attitude, not altitude, of our culture has not discarded any religion, race, people, but has accepted them wholeheartedly. सी ये हमारा एक नेचर रहा है, कोऑर्डिनेट करना, हेल्प करना, है ना. हम लोग तो अनजान लोगों की मदद कर देते हैं. ओके, सो हम लोगों ने होल हार्टेडली सभी रिलीजन वालों को, सभी रेस वालों को, सभी अलग अलग धर्मों के लोगों को हमने इंडिया में वेलकम किया है. ओके, thus impartially towards all religion, people and races is a peculiar characteristic of India. अगर हम इंडिया की खास बात जाने क्या होता है, तो इंडिया का जो रिलीजन है वही सबसे इम्पोर्टेंट है, और इंडिया में इतने सारे लोग, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं. ओके, दस इंडिया इज बिकम द कल्चरल कॉन्फ्लुएंस. ओके, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए अबाउट इंडिया इज अ कल्चरल कॉन्फ्लुएंस, दैट स्ट्रेट अवे यू हैव टू पुट दिस 5 lines in your answer. Now, even though many natural and man-made disasters have taken place, India has consistently continued her progress. Friends, a natural disaster, it's a part of the life, so we can't avoid them. But our country, it's always on the path of progress. So उसको कोई फर्क नहीं पड़ा है, नेचुरल डिजास्टर आते जाते रहते हैं. एंड हमको भी इससे ये चीज़ सीखने को मिलती है कि लाइफ में अप एंड डाउन आते रहते हैं, बट वी नीड टू मूव फॉरवर्ड. आगे, द जियोग्राफिकल कंडीशन हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंस टूवर्ड्स द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ कल्चर. एंड हमारी जो ज्योग्राफी है उसने मतलब एक तरह का हमको एडवांटेज दे दिया. ओके, वो भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कैसे एडवांटेज दे दिया. सो जस्ट अ मिनट, लेट मी बिल्ड माई marker. So friends, we know that there are total 7 continents. मैं ये फिर बाद में डिस्कस नहीं करूँगा जब ये टॉपिक में आएगा. इट इज़ कॉल्ड नॉर्थ अमेरिका. ओके, जो यहाँ पे मैंने राउंड किया है, दिस इज कॉल्ड नॉर्थ अमेरिका, दिस इज कॉल्ड साउथ अमेरिका. गॉट इट? दिस इज अफ्रीका, दिस इज यूरोप, इट्स ऑस्ट्रेलिया, इट्स अंटार्कटिका, एंड हमारा जो कंट्री है डेट कम्स अंडर द एशिया. एंड ये जो आपको वाइट कलर में दिख रहा है ना, ये हमारा प्यारा भारत है. ओके, इंडिया. सो दीज आर द 7 कॉन्टिनेंट्स, एंड इंडिया यहाँ पे आता है.
अच्छा, अब मैं सब ये सब मार्कर हटा देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा आगे एक्सप्लेन करने में ईजी हो जाए। सो अब देर आर 4 ओशन ऑल्सो. Let me remind you, this is called Indian Ocean, this is called Atlantic Ocean. यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक से अटलांटिक को आपको अवॉइड करना है, मैं जस्ट अटलांटिक टू अटलांटिक कनेक्ट कर रहा हूँ. दिस इज कॉल्ड पैसिफिक ओशन समवेयर ओवर हियर एंड यू विल फाइंड इट ओवर हियर ऑल्सो, एंड आर्टिक ओशन जो अपर पार्ट में आएगा. ओके, सो यू कैन सी आगे हम लोग एक और मैप में डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडिया को उसकी पोजीशन का एडवांटेज मिलता है. ओके, सो आई थिंक आपको ये 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 4 ओशंस यहाँ से क्लियर हो गए होंगे. सॉरी फॉर डैट. अब हम बात करेंगे इंडियाज लोकेशन, साइज, एरिया एंड ऑल दैट, एंड हमको ये मैप बहुत हेल्पफुल रहने वाला है. तो बार बार मैं इधर उधर 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 घूमता रहूँगा एज ऑलवेज. India's location and area. Geographically, India lies in the northern hemisphere. Okay, so हमारा जो अर्थ जो राउंड है, हमारा जो अर्थ है वो इट्स पूरा राउंड शेप में, परफेक्ट राउंड भी नहीं है, बीच में इक्वेटर आता है. ओके, अब ये जो ऊपर वाली कंट्री है ना यहाँ पर, ये इसको हम लोग कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ओके, और ये जो नीचे वाली कंट्री है इसको हम लोग कहेंगे सदर्न हेमिस्फीयर. आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. इट एक्सटेंड अप टू द सदर्न पार्ट ऑफ द एशिया कॉन्टिनेंट. सो एशिया के बिल्कुल नीचे था, डेट इज कॉल्ड सदर्न पार्ट ऑफ द एशिया. वेल, अभी मैं सिर्फ रीडिंग पर्पज़ के लिए रीड करूँगा, आगे आके फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. द स्पान ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम द 8 डिग्री 4 मिनट्स टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड. नॉर्थ लैटिट्यूड क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, अबाउट द इक्वेटर. 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड. The Tropic of Cancer is located is at 23 degree 5 minutes north latitude. It divide the country into 2 part, passes to the central of the India. So ये सब चीज़ें मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ. सी, यहाँ पे आता है आपका 8 डिग्री. ओके, 9, 10, 11, 12 एंड यहाँ पे आता है 37. तो ये हमारे हो गए लैटिट्यूड्स. एंड लॉन्गिट्यूड वाइज देखें तो ये 68 डिग्री है, यहाँ पे 68 लिखा हुआ भी है, एंड 68, 69, 70, 71 ऐसे करके 97 डिग्री 25 मिनट्स यहाँ पे आता है. ये भी शो किया हुआ है, ये भी शो किया हुआ है, ये भी शो किया हुआ है. अगर आप लोग ध्यान से देखो ना तो इंडिया के सेंटर में से ही टॉपिक ऑफ कैंसर पास ऑन होता है समवेयर ओवर हियर, जो एग्जैक्टली इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करता है. ओके, टॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला जो एरिया है उसको हम लोग टोरिड जोन बोलेंगे. गॉट इट. एंड उसके ऊपर वाला जो जोन होगा वो टेम्परेट जोन होता है. आई होप ये पूरा मैप आपको क्लियर हो गया होगा. आगे बढ़ते हैं, अब वापस अपने पुराने जगह पे चलते हैं. ओके, बिल्कुल मेरी इमेज के नीचे सीधा कंट्री लिखा है, उसी लाइन में. In the northern part is spread more in the east-west direction. The large plain and the Himalayan mountain system located in this part, and the area of the southern Tropic of Cancer is triangular shape, tapered toward the south. This is basically a peninsula plateau. It includes the eastern parts and द नैरो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. ओके, सो वंस अगेन इन लोगों ने जो बताया मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ. सी, ओके, अगर हम लोग बात करें ना इंडिया का, तो जो ये ऊपर वाला पार्ट है ना ये बहुत बड़ा पार्ट है. एंड अगर हम लोग टॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे जाएँ तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बनता है, देखिए. ओके, एंड ये ट्राइंगल पेनिनसुला फॉर्म करता है. किसी भी चीज़ को हम पेनिनसुला क्या कहेंगे? जब मेन लैंड, ये जो मेन लैंड है, जब ये 3 साइड से
1, 2 एंड 3, ये 3 साइड से अगर घिरा हो तो ही हम इसको पेनिनसुला कहेंगे। और इंडिया का तो पेनिनसुला है और इन्वर्टेड ट्राइंगल में। और वो जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं उसका साइज छोटा छोटा होता जाता है, डेट इज इट्स ट्रैपर्स। ओके, आगे इसमें अपना फोटो एडजस्ट कर लिया करूँगा। डन। सो सेकेंड पैराग्राफ पे आ जाते हैं। द लैटिट्यूडनल एज वेल एज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द इंडिया इज ऑलमोस्ट इक्वल, अबाउट विच इज़ अबाउट 30 डिग्री, but actually the length of the Kashmir to Kanyakumari is 3,214 kilometer, and from Gujarat to Arunachal Pradesh the width is 2933 kilometer and 2,933 kilometer. There is a difference of the 2 hours in the local times to the extreme places of the starting from the Gujarat to the west to the Arunachal in the east due to the longitudinal difference. When is the sunrise in the Arunachal Pradesh? It is still night in the Gujarat, and the standard time of India is 82 degree 30 minutes is longitude, which it passes through the 5 state, and which local time accepted standard time. बहुत सारी बातें लिखी हुई है, फटाफट एक बार इसका डिस्कशन हो जाए तो आपको भी शांति ना मुझे भी शांति। सो सी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इंडिया का लैटिट्यूड देखें या लॉन्गिट्यूड देखो, दोनों लगभग सेम है, 30 डिग्री। ओके, तो लैटिट्यूडनल वाइज लॉन्गिट्यूडनल वाइज तो दोनों सेम ही है। अब जो कश्मीर से कन्याकुमारी का जो डिस्टेंस है ना, ये वाला, ओके, जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 3214। ओके, 3 एक और कम करो, 2 एक और कम करो, 1 एक और कम करो, आप सब ले आओ 4, 3214 किलोमीटर है जो कश्मीर टू कन्याकुमारी, ऊपर कश्मीर है नीचे कन्याकुमारी। समवेयर ओवर यार गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, ये जो डिस्टेंस बनता है ना, ये देखो आपका सेंटर में लिखा हुआ है 2933 किलोमीटर। ओके, इसको लॉन्गिट्यूडनल कहेंगे। और लॉन्गिट्यूडनल वाइज है ना, अपने इंडिया में सबसे पहले सुबह होती है, एक सेकेंड है, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सुबह होती है, एज्यूम कर लो 15 अगस्त 2020। समवेयर नियर 4:30 यहाँ पे सनराइज होता है, तो 6:30 पे यहाँ पे सनराइज होगा। ओके, ये लॉन्गिट्यूडनल इफेक्ट्स के कारण होता है, डेट वी ऑलरेडी स्टडीड इन स्टैंडर्ड 6th and 7th। एंड इसलिए अब जब इवनिंग की बात करें ना, तो यहाँ पर सनसेट अगर 6 o'clock होता है तो वहाँ पे 4 o'clock पे सनसेट हो चुका होगा, मीन्स ये 2 hours का टाइम है। इन दोनों को कंबाइन करके हमने इंडिया के सेंटर में से लाइन पास ऑन की है, एंड ये है हमारा स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 मिनट्स में, जिसको हमने एक्सेप्ट किया हुआ है, जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है और जो यूजुअली 5 स्टेट्स में से पास ऑन होता है। यू कैन सी दिस डॉटेड लाइन। ओके, सो ये बेसिकली 5 स्टेट से पास ऑन होता है, डेट यू यूज टू बी रिमेंबर। लेट्स मूव अहेड। सो टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। सो इंडिया का टोटल एरिया कितना है, 32.8 लाख। ओके, ये नंबर आप एक पेपर पे नंबर लिख लिया करो। वेन एवर यू आर रीडिंग अ चैप्टर, टेक अ पेपर, एंड वेन एवर देयर इज अ नंबर कम, जस्ट नोट डाउन दैट नंबर एंड पुट डैश एंड लिख दो वो क्या है। ये आपको कब काम आएगा, एग्ज़ाम के दिन, क्योंकि यहाँ पे आपके जितने भी MCQ हो सकते हैं, जितने भी आपके फिलअप्स हो सकते हैं, और आप ये नंबर्स कभी गलती कर ही नहीं सकते इफ़ यू फॉलो माई एडवाइस। इंडिया रैंक 7th इन द वर्ल्ड। सो इंडिया का रैंक जो है वो 7th नंबर आता है इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द टर्म्स ऑफ एरिया। अदर 6 कंट्री लार्जर देन इंडिया आर रसिया, कैनेडा, USA, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, सो दिस आर द कंट्री जो इंडिया जिनका साइज इंडिया से बड़ा है। नीचे आ जाते हैं। द लैंड एरिया इंडिया लाइज इन द साउथ इंडिया। तो अगर हम लोग एशिया में देखें तो एशिया में इंडिया नीचे की तरफ आता है, एंड नीचे वाला पार्ट में हमेशा साउथ ही होता है, तो इंडिया एशिया के साउथ में। ओके, एनी हाउ, इन द नॉर्थ लॉफ्टी माउंटेन रेंजेस आर स्प्रेड ओवर द हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। अगर हम लोग ऊपर की तरफ देखें
इंडिया का मैप इमेजिन करो यहाँ पे पूरी पिक्चर में, तो ऊपर से लेके यहाँ तक ये पूरा जो एरिया है ना वो हिमालय माउंटेन्स ने कवर किया हुआ है। डेट इज़ वाई कम्युनिकेटिंग विद द तिब्बत एंड चाइना इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू द पासिस। ये आपके पासिस क्या होते हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू। सी ये माउंटेन्स है, तो अभी ये जो एरिया हो गया ना इसको हम लोग पासिस करेंगे, क्योंकि किसी को ट्रैवल करना है तो इन जो छोटा सा गैप है वहाँ से ही जाएंगे। कोई इतना पागल नहीं है कि इतना ऊपर से फिर बाद में जाए। ओके, सो ये बेसिकली आपके पासिस हो गए। अगर हमको चाइना या तिब्बत जाना है या उन लोगों को यहाँ पर आना है तो हम लोग पासिस का ही ऑफकोर्स यूज़ करेंगे। एंड बे ऑफ बंगाल लाइज इन द ईस्ट, अरेबियन सी टू द वेस्ट एंड इंडियन ओशन इन द साउथ of the peninsula India. The sea water is utilized as a waterway, and even though land routes is obstructed by spreading mountain, India has accepted the cultural element arriving from outside, and this were merged into the Indian society. So straight away इस मैप पे हम लोग आते हैं, एंड ये कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट मैप है। अभी हमने देखा इंडिया पेनिनसुला है, यहाँ पे उसके वेस्ट में ये है हमारा अरेबियन सी, इसको मैं राउंड कर रहा हूँ थोड़ा, हाँ ठीक है। एंड नीचे साउथ में यू विल फाइंड इंडियन ओशन, इन द ईस्ट यू विल फाइंड बे ऑफ बंगाल। गॉट इट। तो ये इंडिया का मतलब एक जोग्राफिकल एडवांटेज है। तो इंडिया के यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं इसने क्या किया, एक तरह से इंडिया को हमेशा प्रोटेक्ट रखा मंगोलियन चाइनीज़ अटैक से। इंडिया पे जितने भी अटैक हुए थे ना वो यहाँ से हुए थे, कभी भी किसी ने वहाँ से अटैक किया ही नहीं, करेगा भी कैसे। हिमालय माउंटेन्स पे 5000 मीटर्स के बाद तो सांस फूलने लग जाती है, आधी आर्मी तो उधर ही बेहोश हो जाएगी, चक्कर आ रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। एंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम टू अटैक इंडिया फ्रॉम सच अ बिग हाइट। ऊपर जाने जाने में आधी आर्मी तो बीमार पड़ गई तो क्या लड़ेंगे। इवन आज भी चाइना हमसे डायरेक्ट टक्कर ले नहीं ले सकता है बिकॉज ऑफ द हिमालय ओनली। इंडिया के ना फॉर एग्जांपल मुंबई से हम लोग अरब कंट्रीज भी जा सकते हैं, अफ्रीका भी जा सकते हैं, मिडल अफ्रीका, सदर्न अफ्रीका भी जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं, फिर मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड वगैरह वगैरह ये सब कंट्री में भी हम लोग जा सकते हैं। तो एक तरह का इंडिया को जोग्राफिकल एडवांटेज है। अगर कोई भी जा रहा है तो हम बहुत इजीली स्प्रेड आउट हो जाते हैं और हमको ये एडवांटेज बट नेचुरल है, हम हमेशा से मिलता आया है। So we are going to discuss about this only. So India's strategic location in the eastern hemisphere. ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पूरा अर्थ जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। सो ये वाला पार्ट है डेट्स कॉल्ड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला पार्ट है डेट्स कॉल्ड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया वर्ल्ड में यहाँ पर आता है। सो ईस्टर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है और इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओशन हैव कंट्रीब्यूटेड इमर्सली इन द डेवलपिंग ऑफ द म्यूचुअल relation in ancient time. India had a trade relation with East Africa, West Africa, South Asia, Southeast Asia. Since ancient time, India development cultural confluence relation with them due to her location. No country in the Indian Ocean has a long maritime boundary as India has. Due to its strategic location, the ocean named it Indian Ocean. सो आई ऑलरेडी डिस्कस कि इंडिया के रूट्स कहाँ कहाँ पर थे, और जो इंडियन ओशन है सबसे ज़्यादा मेरीटाइम बाउंड्री हमारी कंट्री की लगती है। सो दैट इज़ वाई वहाँ पे हमने उसको इंडियन ओशन नाम मिला हुआ है। नाउ सी पहले क्या होता था कि पूरी दुनिया में जब सी रूट की डिस्कवरी हुई तो हम लोग पूरा अफ्रीका यू पूरा तैर के बाद मतलब पास ऑन करके बाद में आ रहे थे। सो बाद में इन लोगों ने क्या किया, एक स्विस कैनाल बना दिया 1869 गांधी जी का बर्थ ऑफ ईयर है। सो इजली याद रह जाना चाहिए। इससे क्या हुआ, डिस्टेंस जो था यूरोप एंड इंडिया का वो 7000 किलोमीटर कम हो गया। एंड इससे फिर जो अलग अलग पासेज हैं वो सब ओपन हो गए, स्ट्रेट ऑफ मलक्का एंड ऑल डेट थिंग्स। नाउ अभी हम लोग अब मैं आपको 1 मिनट 5 सेकेंड के लिए पॉज ले रहा हूँ, आप ये फटाफट ये पूरा पैराग्राफ रीड कर लो एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट। ओके,
आई थिंक आपने पढ़ लिया होगा। सो ऊपर वाला पैराग्राफ ने समझा लिया, मैं नीचे आ जाता हूँ। सी इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है ना बहुत सारे कंट्री पे रहा हुआ है। सो इंडिया की जो स्टोरीज हैं, उपनिषद है, रामायण है, पंचतंत्र है, बराबर। हम लोगों ने पूरे वर्ल्ड को न्यूमेरिक सिस्टम दिया है, डेसिमल सिस्टम दिया है। एंड इंडिया इज ए बेसिकली कन्फ्लुएंस ऑफ 29 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। अगर आप एग्जाम में इसका अपडेट भी लिखते हो, 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग कैपिटल, तो तभी मैं आपके मार्क्स नहीं कट करूँगा, डोंट वरी। बट हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप की कोई एग्ज़ाम होती है तो आपको 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरीज ही लिखना है, और जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर MCQ टाइप की एग्ज़ाम होती है तो। एंड नाउ दिस इज़ द थिंग दैट इंडिया का जो साउथ ईस्ट एशिया में इंपॉर्टेंट पोजीशन ही है, प्लस इंडिया के पास 29 स्टेट्स हैं, जो भी 28 हो चुके हैं। नेशनल टेरिटरी दिल्ली है, ओके, एंड 6 यूनियन टेरिटरीज हैं जो भी 8 हो गई है। कैसे हो गई? क्योंकि जम्मू कश्मीर नाउ आर द 2 यूनियन टेरिटरीज, लेह लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। तेलंगाना वॉज क्रिएटेड इन 29th स्टेट एज इट्स मदर स्टेट आंध्र प्रदेश ऑन 2 जून 2014। इंडिया के नेबरिंग स्टेट बहुत सारे हैं, सो चलो डिस्कस करते हैं। सो एज यू कैन सी, बिल्कुल साउथ में नीचे आ जाते हैं। सो वी हैव मालदीव्स एंड वी हैव श्रीलंका। इफ़ यू टॉक अबाउट ईस्टर्न कंट्रीज, you will find Myanmar and you will find the green one, Bangladesh, Bhutan. Now if I talk about northeast, then you will find China and you will find Nepal. Okay, now we are going to this part, that is called northwestern. You will find Pakistan, our favorite neighbor, and Afghanistan. So these are the neighbors of our country. And at last, Maldives we are already talked, and Maldives is a maritime country since it is surrounded by the sea from all the side. India and Sri Lanka is separated by the Palk Strait and Gulf of Mannar. So these are the some gulf जो हमारे कंट्रियों के बीच में आता है. And we have Andaman Nicobar and Lakshadweep Islands. So इंदिरा पॉइंट इज द मोस्ट सडन पार्ट. ओके, ये इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है मैं आपको ज़रा शो ऑफ कर देता हूँ. सी इंदिरा पॉइंट इट इज़ समवेयर ओवर हियर, बिल्कुल लास्ट में आप देखिएगा. ओके, एंड 2004 में जो सुनामी आई थी, ड्यू टू इट उसके कुछ लैंडफॉर्म चेंज हो गए थे, कुछ पार्ट जमीन के अंदर चले गए, कुछ पार्ट ऊपर रह गए. In my second part, I am going to discuss the geological structure, and I will going to finish this chapter, and later I will bring question answer of this chapter, and we will discuss it on it. And I hope chapter number 9 भी बाकी है, I think. Okay, so उसके भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे. Thank you very much. Have a nice day and take care of yourself. And मास्क पहना करो.